नाम बताइए। My name is Angel and this is my team. Let me introduce you to first. This is hello. C is Kajal, C is Aditi, C is Ayushi, and C is Kajal. Anjali. We have combined two projects into one project. Depends on both projects are depends on pollution, purification of pollution. First is carbon purification, and second is wastewater treatment. This is this project is based on carbon purification. This project consists of a factory made of aluminium foil because it will not burn the box from fire, and exhausted fan help to flow of carbon into the carbon absorber, and here the clean carbon will come out. Now I am explain you. First, we burn candle. You can see that paper don't have black due to carbon. Now the dirty carbon will pass through the pipe into the carbon absorber, and the clean air will come out. Filter the carbon into clean carbon. The management is the collect, treating and using the wastewater to protect our water resource. And you can see in first step we use gravel, which used to removing visible impurities and improving water clarity, and in second step we use stone, which helps in a large area to colonize bacteria and from wastewater, and in third step we used charcoal, which helps to solid and sinkable particles removed from the water, and in fourth step we used sand, which remove all dyes or oil particles, heavy metals, and in last step we use cotton, which play very important role in water purification. आपने साइंस एग्जीबिशन का पहला पार्ट देख लिया, आज देखेगा दूसरा पार्ट। और हाँ, आपको पहला पार्ट कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। Plant is also known as cover gas. This work really work. Dung of cow and animal waste, plant waste, mix it here and send through this inlet pipe. This tank, bacteria produce होता है. Methane gas produce this tank and produce gas for electricity and cooking food. And this pipe going to this tank to gas release for cooking and area. Thank you. Not bad, not bad. Now you. बायोगैस ऊर्जा का स्रोत है। इसका इस्तेमाल हम लोग बार बार कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल घरेलू तथा गृह कार्यों में करते हैं और यह प्लांट के लिए बहुत लाभदायक होता है। और इस बायोगैस से हम लोग खाना बना सकते हैं, जिससे सिलेंडर कम मतलब बचत होगी, और बायोगैस से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं। Not bad, not bad. Now you. Inside the cow, some bacteria are called biogas, are found in part of cattle. They digest from food. From here, bacteria also go to cat dungs. The cat dungs feed biogas plant, and biogas produced is from detail. First all put cow dung strawn in talent bank, then it mix well. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अपना नाम बताइए। अदिति कुमारी। आप कौन सी क्लास में है? 7th है। और आपका प्रोजेक्ट क्या है? ग्रीन टेक्नोलॉजी। आपका प्रोजेक्ट का मोटो क्या है? सेव इन्वायरमेंट। और ये वर्क कैसे करता है? ये वर्क करेगा स्मोक फिल्टर और कार्बन। यहाँ पे सबसे पहले एक आयर सेंसर है, वो जाके सेंस करता है कार में से जो भी धुआं निकलता है, पॉल्यूशन सारे चीज को। उसके बाद फिर वो यहाँ पर कार्बन फिल्टर आप देख सकते हैं, इसके अंदर वो एक फैन लगा हुआ है, वो पूरे डर्ट पार्टिकल्स को सेपरेट करके फिर कार्बन को फिल्टर कर उसके बाद इस स्मोक एब्जॉर्बर में डालता है, जिसमें स्मोक एब्जॉर्ब करता है जितना भी धुआं होता है। उसके बाद ये स्मोक फिल्टर है, जिसमें स्मोक में से ब्लैक कार्बन को फिल्टर किया जाता है। उसके बाद फिर कार्बन फिल्टर होकर इंक में कन्वर्ट हो जाता है, और उसे अगर हम वाटर में मिलाएंगे तो वो एक लिक्विड इंक बन जाएगा, जिससे हम आर्ट, पेंटिंग ये सारी चीज कर सकते हैं।
नाम बताइए। मेरा नाम अंजलि कुमारी है। आप कौन सी क्लास में हो? मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। और आपका प्रोजेक्ट क्या है? मेरा प्रोजेक्ट है नेचुरल एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर। और वर्क कैसे करता है? ये सर देखिए, हम लोग इसमें मतलब ये लोगों ने एकदम नेचुरल और स्मार्ट तरीके से बनाया है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने स्केयर क्रो का यूज किया है, जिससे कि ये कोई एनिमल आए, कोई बर्ड आए और वो हमारे फसल को खराब करे, तो उससे बचाव के लिए जब इसको हम ये अटैच करेंगे तो ये हिलता, मतलब राउंड करता है, जिसके कारण कोई बर्ड इसको देख के उसको लगे कि ये यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, तो इसके कारण वो यहाँ पे आएगा नहीं और ये हमारा जो क्रॉप है उसको खराब नहीं करेगा। अगर कोई एनिमल आता है हमारे क्रॉप के आसपास और इस फेंस को टच करता है, तो उसको एक हार्मलेस शॉक लगेगा, जिसके कारण वो यहाँ से एकदम दूर हो जाएगा। फिर आएगा अगर वो वापस, तो फिर उसको शॉक लगेगा, और जब शॉक लगेगा तो यहाँ पे जो बजर है वो बजर साउंड करेगा, जिससे कि किसान को भी पता चलेगा कि कोई हमारे खेत के आसपास आया है, तो वो अपने क्रॉप को ऐसे बचा सकता है। और ये है हमारा सर ये प्रोटेक्शन ऑफ हार्वेस्ट। जैसे कि हम लोग जानते हैं इंडिया में 22% जो है वो हमारा ये क्रॉप्स जो है, हार्वेस्ट जो है बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे जो मतलब अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, मतलब ये जो फैन है वो गर्म हवा को अंदर से निकालता है और ठंडी हवा को अंदर ये रखता है, ताकि हमारे क्रॉप को कोई नुकसान न पहुंचे। और ये हमारा हाइड्रोपोनिक्स जो बिना सॉइल के किया जाता है, यहाँ बस ओनली पानी का यूज किया जाता है क्रॉप्स को उगाने के लिए। इसको हम लोग कहीं भी नॉर्मल जगह, मतलब अपने घर पे भी कर सकते हैं और कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे कर सकते हैं। इसमें ओनली पानी की जरूरत होती है और मतलब केमिकल्स नहीं यूज किया जाता है। यहाँ पे नेचुरल तरीके का कुछ, जैसे कि कोकोनट का जो छिलका होता है वो यूज कर सकते हैं हम लोग इसको उगाने के लिए। थैंक यू। Friends, myself Vishal Kumar. Our group make the thermal power project. यहाँ से हम लोग कोल को लेके आते हैं, ये हमारा कोल फील्ड है। यहाँ से हम लोग इस फैक्ट्री में लाते हैं। यहाँ पे हमारा ये टर्बाइनल है, यहाँ पे हमारा बॉयलर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से जैसे ही कोल आता है, कोल आने के बाद बॉयलर उसे हीट करता है और हीट करने के बाद जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से स्टीम टर्बाइनल में जाती है और यहाँ से ये टर्बाइनल रोटेट करना स्टार्ट करता है, और जब टर्बाइनल रोटेट करता है तो उसके थ्रू ये जनरेटर भी रोटेट करने लगता है, जिसके वजह से हीट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रोबोटिक फायर रोबोटिक काम करता है, जब आग लग जाता है इसको बुझाने में काम करता है। इसका यूज है जहाँ पर जंगल में कभी आग लग जाता है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। उसको नहीं यूज करते हैं, मतलब हेलीकॉप्टर से बुताते हैं पर नहीं हो पाता है, इसीलिए ये कार को मतलब किया गया है, मॉडल ले आया गया है और इसको यूज किया गया है। ठीक है। ये देखिए नन्हा से बच्चा कैसे ड्रोन उड़ाएगा, छोटा सा बालक कैसे ड्रोन उड़ाएगा, देखते रहिए, अपनी नजरें जमाए देख रहे हैं कैसे उड़ा दे रहा है बच्चा। ये छोटा सा बालक है और पूरा गर्दा मचा दिया है। और पोटेशियम पर मैग्नेट बेस है जो एसिड बेस रिएक्शन करके, और ये चोको लावा रिएक्ट करता है और चोको लावा रिएक्शन का नाम है। सो जब ये कंबाइन हो रहा है, एसिड और रेस रिएक्ट कर रहा है, तो ये इसका फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन है, इसमें लावा हो रहा है। इस पूरे केमिकल रिएक्शन का नाम चोको लावा रिएक्शन है। ये HCl है। HCl में जब जिंक डालेंगे तो उसमें Zn प्लस में ब्रेक होगा और Cl माइनस में ब्रेक होगा। जब जिंक है और जब जिंक Z प्लस में ब्रेक होगा, और ये जो ये गैस निकल रही है हाइड्रोजन गैस है। जब इसमें हम लोग बॉम्ब साउंड क्रिएट होगा और इसमें हाइड्रोजन गैस कैच करता है फायर, तो ये कैच करेगा फायर। सोलर रूफटॉप जो
सूर्य की रोशनी को कैप्चर करता है, रात को इसमें प्रोड्यूस करता है और सुबह होते ही ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। और ये है वायरलेस कार चार्जिंग। करवा कहाँ गया? सॉरी 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 सॉरी। यहाँ पे कार आते ही चार्ज होता है और चार्ज हो गया तो कार अपने आप आगे चल जाएगा। ये क्या है? ये वॉइस कंट्रोल कार है जिसमें कि ये वॉइस से कंट्रोल होगा। और इसको एक फायदा ये भी है कि ये डिसेबल पर्सन बहुत अपने वॉइस से कंट्रोल कर सकता है। और इसमें एक और पार्ट है फ्यूल फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम। यहाँ से फ्यूल डलाएगा इसमें और यहाँ पे उसका एक्यूरेट वॉल्यूम शो करेगा। अच्छा, इसके अंदर के पार्ट का थोड़ा नाम बताओ। इसके अंदर में कौन सा? इसके अंदर में यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, एक आर्डिनो यूज हुआ है, 2 आर्डिनो यूज हुआ है और एक मोटर ड्राइवर शील्ड यूज हुआ है। उस प्लस में 4 मोटर है, ये गियर मोटर और SC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल और स्विच है 2। तो मतलब कि ये हम अपने वॉइस से ये काम करेगा, मतलब बोलेंगे लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट। अच्छा, हेलो प्लीज लेफ्ट टर्न नहीं कर रहा है। वैसे नहीं, हम लोग के पास उसका लिए ऐप आता है। अच्छा, उसके लिए ऐप आता है। हाँ, वो हम लोग मोबाइल में डाउनलोड करते हैं, उसके बाद ऐप से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके लिए हम लोग को भी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मान लो कि हम लोग बनाए तो। हाँ, ये थर्मल पावर प्लांट है। इसमें सबसे पहले कोयल को कोल यार्ड की मदद से कोल मिल में लाया जाता है। फिर वो कोयल माइल से फर्नेस में बर्न होता है और उसके हीट से जो बॉयलर में पानी होता है उसको गर्म करता है। आपका आवाज किधर देखेला लगता है मेरे को। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है रे। और वो पानी स्टीम के रूप में बदल जाता है और उसी स्टीम से टरबाइन को रोटेट किया जाता है। और टरबाइन से जुड़े होते हैं शाफ्ट और शाफ्ट से जुड़े होते हैं जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराता है। वाटर साइकिल के बारे में, इधर से बॉयलर से जो स्टीम निकलता है वो टरबाइन में जाता है। कुछ स्टीम जो है कंडेंसर में भी आता है और कंडेंसर से वार्म वाटर जो निकल के फिर कूलिंग टावर में जाता है और कूलिंग टावर से इधर से हवा जाती रहती है तो कुछ जो है वो वाटर वेपर के रूप में बदल जाता है, कुछ जो है वो ठंड होकर फिर से पानी में आ जाता है और फिर वाटर को फिर से कंडेंसर में ले जाता है और जो स्टीम जो है वो तो हीट होकर फिर से वाटर फीड पंप के पास चला जाता है और वाटर फीड पंप का काम होता है इसको फिर से बॉयलर में भेज देना। फिर वही प्रक्रिया होती रहती है। थैंक यू। वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिससे हम लोग बारिश के पानी को साफ करके उसके कोई जैसे कि इरिगेशन में बहुत सारे कामों में प्रयोग करने वाले को हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। और जैसे कि अगर हम लोग ये वाला अगर ये बारिश का पानी इसमें जाता है और इससे जो वो गंदा होता है और उससे जाके यहाँ पे ये साफ होके ये मेन टैंक में आता है। मेन टैंक के बाद ये वेल कुआं से जाते हुए इसका गार्डन में बहुत सारा गाड़ी धोने में बहुत सारा प्रयोग होता है। उसी चीज को कहते हैं हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और ये बाद में अपने वाटर साइकिल से फिर ऊपर बारिश क्लाउड से बारिश फिर बरसते जाता है। यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी। हाँ, ये कर लो पहले। Good evening, sir. I am Ria from Standard 11th and this is our project Hydroelectric Power Plant. The main purpose to making this project is to tell the people where did the electricity comes from. People are unaware of from where did the electricity comes to their home. So let we know that what is hydroelectric power plant. हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट एक तरीके का पावर जनरेटिंग स्टेशन होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है वाटर के पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का यूज करके। इसमें सबसे पहले डैम में वाटर स्टोर रहता है और कुछ हाइट होने की वजह से इस वाटर में पोटेंशियल एनर्जी रहता है। जैसे ये वाटर फ्लो करके इस टरबाइन पर स्ट्राइक करता है, वाटर का जो काइनेटिक एनर्जी होता है इस टरबाइन के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके वजह से यह टरबाइन रोटेट करता है। इस टरबाइन के रोटेट करने की वजह से इस टरबाइन का शाफ्ट भी रोटेट करता है और ये शाफ्ट जो है इस अल्टरनेटर के शाफ्ट से कपल्ड होता है, जिसकी वजह से ये अल्टरनेटर का शाफ्ट भी रोटेट करता है। इस अल्टरनेटर में 2 मैग्नेट होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और 2 मैग्नेट के बीच में कॉइल होता है। ये शाफ्ट के रोटेट करने की वजह से वो कॉइल भी रोटेट करता है और कॉइल रोटेट करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है
देख मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। जैसे कोई एरिया है, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। उस अंडर व्हिच रूल इट हैज बीन गोइंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ। देखिए गांव में बिजली आ गया। Yes, today I'm here to talk about an electricity generated by waste material. That we all know, waste management is significant challenge. What if we could change into something valuable? Waste to energy technology make it possible. Let's try it. जैसे कि हम लोग यहाँ जहाँ ये प्रोजेक्ट इसीलिए जहाँ पे हम लोग का सनलाइट नहीं पहुँचता है और जहाँ हम लोग का ये तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बोलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगे लाइक करिएगा, ठीक है। अब जा रहे हैं घरे चाय पी के।